Assalamu alaikum. My name is Dr. Huda Haider, and today we will start the anatomy module in which we will start with the abdominal wall. In our today's lecture, we will discuss about the muscles of the abdominal wall, what are the layers of the abdominal wall, and what is the blood supply, nerve supply, and the lymphatic drainage of the abdominal wall. So, starting with the layers of the abdominal wall, as seen in the diagram, that the foremost, the first layer is the skin, and after skin there comes the superficial fatty layer that is also called the Camper's fascia. And after Camper fascia, there is the deep fibrous layer that is called the Scarpa's fascia. After that, there are the three muscles, which are the external oblique muscle, internal oblique muscle, and the transversus abdominis muscle. Then there comes the transversalis fascia, which I have made it in with a green color. And then there is the extraperitoneal fat, and this is the fascia and the peritoneum. So these are the layers of the abdominal wall. When you will keep the diagram in your mind, it will be very easy for you to solve the MCQs as well. And I have tried to demonstrate the lecture in the diagrammatic form, क्योंकि जो पिक्टोरल मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है खाली याद कर लेने से. तो जब आपने डायग्राम्स और इसको याद करने का भी तरीका ये है that all of you must make your own notes after watching this lecture. Then what are the muscles of the abdominal wall? The muscles of the abdominal wall, these are the external oblique muscle, the internal oblique muscle, transversus abdominis muscle, and the rectus abdominis, and the pyramidalis muscle. So in this diagram, these are the bones, cartilage. This is the muscle. The external oblique muscle, it arises from the anterior angles of the last 8 ribs, and it is attached to the sternum, the linea alba. Linea alba हम कहते हैं कि जो एपोन्यूरोसिस मसल्स की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल ट्रांसवर्स abdominis मसल, जो कि मिड लाइन के अंदर फ्यूज़ हो जाती हैं एंड दे मेक द वाइट लाइन इन द इंटीरियर ऑफ द एब्डोमेन. उसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड लीनिया एल्बा. It is attached to the pubic symphysis, to pubic crest, inguinal ligament, the anterior half of the iliac crest. And as seen in the diagram, the direction is downward and medial. जैसे अपना हाथ जैसे हम पॉकेट में डालते हैं तो जो डायरेक्शन होती है ना, डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की डायरेक्शन होती है. एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इज़ फ्रॉम द T7 एंड द T12, जो नर्व्स होती हैं वहाँ से इनकी सप्लाई जाती है. नेक्स्ट इज़ द इंटरनल ऑब्लिक मसल. द इंटरनल ऑब्लिक मसल, इट्स एक्सटेंट इज़ फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द आइलिक क्रस्ट, lateral 2/3 of the inguinal ligament, and from the lumbar fascia. और कहाँ तक ये जाता है? टू द कॉस्टल मार्जिन्स, रेक्टस शीथ एंड द लीनिया एल्बा. जो आपको पता होगा कि कॉन्जॉइंट टेंडन कैसे बनता है. कॉन्जॉइंट टेंडन बनता है फेशिया ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से. तो जो कॉन्जॉइंट टेंडन होता है, दैट इज़ अटैच्ड इंसर्टेड इनटू द प्यूबिक crest एंड द पेक्टिनियल लाइन, एंड द नर्व सप्लाइज फ्रॉम द T7 to T12, and the conjoint tendon that gets its blood supply from the ilioinguinal nerve. Now the rectus abdominis muscle. The rectus abdominis muscle, this is the rectus abdominis muscle. ठीक है, और इसकी आपने डायग्राम जहन में रखनी है. इसके ओरिजिन होता है फ्रॉम द 5th, 6th एंड 7th कॉस्टल कार्टिलेजेस. ये रिब्स हैं और ये वाला इनका जो रीजन होता है, दैट इज़ द कॉस्टल कार्टिलेजेस. एंड इट इज़ इंसर्टेड, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, यहाँ के ऊपर जो बोन है इसका, यहाँ आइलिक क्रस्ट और वो सारा वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाइल डूइंग द पेल्विस. और इसमें ये इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट है, प्यूबिक बोन के ऊपर, वहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है. अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन आपने याद रखनी है रेक्टस एब्डोमिनस की, कि जो टेंडिनस इंसर्शंस हैं, देयर आर 3 दैट आर बिटवीन द ज़ीफॉइड एंड द अम्बलाइकस. ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड द अम्बलाइकस, इसके दरमियान 3 टेंडिनस इंसर्शंस हैं, 1 2 3, ठीक है. एंड 1 इज़ बिलो द अम्बलाइकस. जो ये वाला है, दिस इज़ द अम्बलाइकस. एक टेंडिनस इंसर्शन इसकी बिलो द अम्बलाइकस है और 3 इसकी अबव द अम्बलाइकस हैं. और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, दे पियर्स एट दिस साइट.
ठीक है। यहाँ पे एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस जो है यहाँ पे पियर्स करके दे अनास्टोमोस विद द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। Now the transversus abdominis muscle. The transversus abdominal muscle, its extent is from the costal margin, the lumbar fascia, anterior 2/3 of the iliac crust, lateral half of the inguinal ligament, और इसकी इंसर्शन है टू द रेक्टस शीथ, लीनिया एल्बा, और जो कंजॉइंट टेंडन है वो प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनियल लाइन तक जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। नर्व सप्लाई इसकी T7 से T12 की जो नर्व्स हैं वहाँ से होता है, और इलियो इंगुइनल नर्व दैट इनर्वेट्स द कंजॉइंट टेंडन। ये आपने याद रखना है, ये MCQ में भी पॉइंट काफ़ी दफ़ा आ चुका है। Now the pyramidalis muscle that lies at the front of the body of the pubis to the linea alba, rectus sheath के अंदर ये होता है। accessory muscles है, हर एक के अंदर pyramidalis नहीं भी होता, और इसकी नर्व सप्लाई है सब कॉस्टल नर्व है T12, उसके लेवल से इसकी नर्व सप्लाई होती है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से MCQs इसके बारे में आए हुए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अबव द आर्कुएट लाइन रेक्टस शीथ की कितनी लेयर्स होती हैं, बिलो द आर्कुएट लाइन इसकी कितनी लेयर्स होती हैं रेक्टस शीथ की, और अबव द कॉस्टल मार्जिन इसकी कितनी लेयर्स हैं, एंटीरियर लेयर कितनी है, पोस्टीरियर लेयर कितनी है। बेसिकली जो रेक्टस शीथ है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंजॉइंट एपोन्यूरोसिस ऑफ द फ्लैट एब्डोमिनल मसल्स, लाइक जो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के फेशिया हैं, ये मिलके इनके जो एपोन्यूरोसिस है दे फॉर्म द रेक्टस शीथ, एंड इट इज़ फॉर्म बाय द डीकसेशन एंड इंटरवीविंग ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ दीज मसल्स. The very important point for MCQ that anterior sheath is formed by the aponeurosis of external oblique muscle throughout its length. जो MCQs आते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर शीट है वो तो टोटल एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से ही बनती है, लेकिन जो पोस्टीरियर शीट है उसमें इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का फेशिया आता है, लेकिन किस लेवल के ऊपर जाके पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट हो जाती है, और आर्कुएट लाइन के ऊपर जो है वो पोस्टीरियर वॉल क्या है, और आर्कुएट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल किस चीज़ की बनती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। आर्कुएट लाइन क्या होती है? द आर्कुएट लाइन इट लाइज मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस, एंड इट डिमार्केट्स द ट्रांजिशन between the aponeurosis of the posterior wall of sheath covering the superior 3/4 of the rectus and the transversalis fascia covering the inferior quarter. जो आर्कुएट लाइन है इसके ऊपर डिमार्केशन एक पॉइंट है, ये डिमार्केटिंग पॉइंट के उसके ऊपर जो होती है रेक्टस शीथ उसकी पोस्टीरियर वॉल होती है, और आर्कुएट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल रेक्टस शीथ की डेफिशिएंट हो जाती है, और वो जो छोटा सा थिन सा ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है एंड इट जस्ट मेक्स द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ. So we will discuss it with the diagram. This is the rectus abdominis muscle. This is the external oblique muscle, and which I have made the aponeurosis. This is the costal cartilage. Above the costal margin, only the rectus sheath it is formed by the aponeurosis of the external oblique muscle, and above the arcuate line, the internal oblique muscle, the aponeurosis of internal oblique muscle, it divides at the lateral border of the internal oblique muscle into the anterior and the posterior leaflets. The anterior leaflet it moves anteriorly and joins with the aponeurosis of external oblique muscle, and the posterior leaf it goes posterior to the rectus abdominis muscle, and it joins with the aponeurosis of the transversus abdominis muscle. So this is the above the arcuate line. अगर आपको MCQ आए कि above the arcuate line posterior जो लेयर है पोस्टीरियर वॉल रेक्टस शीथ की किससे बनती है, तो आपने लिखना है कि एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के साथ है. अब बिलो द आर्कुएट लाइन, अब बिलो आर्कुएट लाइन ये हमने देखना है कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल की एपोन्यूरोसिस है, ये तीनों इट ज्वाइंस टुगेदर एंड इट फॉर्म्स एज वन, और इस पे बिल्कुल ये एंटीरियरली चले जाती हैं और पोस्टीरियर वॉल इसकी बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाती है.
ठीक है। और जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस, तो यही है कि एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की एपोन्यूरोसिस आगे जाके एंटीरियर वॉल बना देंगी। और ट्रांसवर्सस फेशिया जो है वो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, इट ओनली फॉर्म्स द पोस्टीरियर लेयर, जो कि पेरिटोनियम के बाहर का लूज सा फेशिया है, वो इसकी रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वॉल बना देगा। रेक्टस शीथ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़, और इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है।